Admission. First 4 topics are the part of our syllabus. Fifth topic is adjustment of capital. That is not a part of our syllabus. CBSE की तरफ से deleted है. So we are going to start with sacrificing ratio. सबसे important point, whenever the case studies will come, they may ask from you to calculate sacrificing ratio. So what used to happen in case of admission, we were having certain partners which we call in this chapter old partners. They find us that there is a problem of capital or a shortage of capital, or they want some more क्या बोलते हैं human power. For that purpose, they may introduce a new person into their partnership, which we call the new partner, and the new partner is being admitted. When the new partner comes, he comes for certain share, and that share usually he gives me in the question. For example, new partner is coming for 1/5. When the new partner is coming for 1/5, we used to calculate remaining share. ठीक है, अगर खुद कुछ नहीं कहा होता तो हम remaining share को उनकी old ratio में ही क्या किया करते थे, divide. So with the help of this, we were in a position to calculate the new ratio. We have different cases, right? जब नए बंदे की रेशियो दे रखी है तो आपने न्यू रेशियो खुद निकालनी है. न्यू और ओल्ड के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्रीफाइसिंग. सो सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है? अर्लियर ही वाज गेटिंग मोर शेयर एंड नाउ हिज शेयर गॉट रिड्यूस्ड. So old minus new is equal to sacrificing ratio. But if its answer comes into negative, then it may be possible that at the time of admission, one of my old partner may gain. Every time you will be applying the formula of sacrificing ratio. So he may ask you to calculate new profit sharing ratio. He may ask you to calculate sacrificing ratio. Then we have treatment of goodwill. So many cases are there for treatment of goodwill. ये दो टॉपिक करने के बाद we will be solving certain back exercise questions, right? What is the meaning of treatment of goodwill? It is essential at the time of admission that the new partner will bring his share of goodwill. When he is supposed to bring his share of goodwill, we call it premium for goodwill, right? अगर वो कैश में लेके आता है तो क्या एंट्री होगी? अगर उसके पास कैश नहीं है तो क्या एंट्री होगी? अगर वो पार्टली कैश में लेके आता है or partly he is not in a position, like he doesn't have the sufficient amount to bring his share of goodwill in cash, then how it is to be treated? When he brings his share of goodwill in cash, we call it cash account debited to premium for goodwill. And the second entry you have to keep in your mind, that is whatever goodwill he is bringing, that is to be divided between the old partners in their sacrificing ratio. So that's why we calculate sacrificing ratio. If somebody asks from you, why do we calculate sacrificing ratio? This ratio is being calculated at the time of admission to give the compensation to the old partner for sacrifice made by them. And for what compensation they will be getting? They will be getting the compensation in the premium for goodwill being brought in by the new partner. जो नया बंदा अपने हिस्से की goodwill लेके आता है, that is to be distributed in the sacrificing ratio. So I was telling you the journal entry. Cash account debited to premium for goodwill, right? और अगली एंट्री वो नहीं बताता, हमने करनी होती है. ये जो premium for goodwill वो लेके आया है, that is to be divided between my old partners. I will not say, or I should not say old partner, I should say sacrificing partner. If some of the partner is gaining, then that partner is not getting the compensation of premium for goodwill. So better to say every time sacrificing partners. So अगली एंट्री क्या होगी? Premium for goodwill account debited to sacrificing partner, right? In their sacrificing ratio. So this is the first case when he brings his goodwill in cash. Now we have 5 or 6 cases in our book that all cases related to goodwill we will discuss so that you can have an idea how the goodwill is to be treated. Sometimes in the question he himself gives you the calculated value of goodwill and sometimes he asks you to calculate goodwill. So goodwill का chapter हम लोगों ने full fledged किया होता है. जो formula वो बोलेगा, that formula we will apply and accordingly we will be calculating the goodwill. Let's see. Yes, first case. Yes, ये भी सबको पता होना चाहिए. Let me write this case on the board. Goodwill is paid privately. हिंदी और पंजाबी में बोलेंगे अंदर खाते नया बंदा अपने हिस्से की गुडविल पुराने पार्टनर्स को दे देता है. We call it goodwill is paid privately. Done.
Goodwill is paid privately. अंदर खाते means under the table. Then there is no entry is there. कोई भी entry आपने इसकी नहीं करनी. This point you have to keep in mind. When the new partner gives a share of goodwill privately to the partner, like A को कहता है तू 50,000 ले ले, B को कहता है तू 30,000 ले ले, and they just satisfy with that amount. So this is what we call goodwill is being paid privately. Second case, right now we discussed, goodwill is brought in cash or by check. अगर चेक है तो बैंक को डेबिट कर देना. एंड अगला वर्ड सुनना, इज रिटेन्ड इन द बिजनेस. रिटेन्ड का मतलब क्या है? पुराने पार्टनर्स ने या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने उस गुडविल को विथड्रॉ नहीं किया. सो जो एंट्री मैंने करवाई है, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, देन प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स. सो दिस इज व्हाट रिटेन्ड इन द बिजनेस. रिटेन्ड का मीनिंग पता है ना? द ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट विथड्रॉइंग देयर शेयर ऑफ गुडविल. कई बार क्वेश्चन में लिखा होता था ना, the old partners decided to withdraw the half of the goodwill. So in that case हमारी एंट्री क्या रहती है? old partners account debited to cash या फिर to bank, right? आगे चलते हैं भाई. थर्ड केस, goodwill is brought in cash and is withdrawn. यहीं पे करते हैं, retained की जगह withdraw. Goodwill is brought in cash and is withdrawn, या तो fully या partly. Withdrawn partly or fully by the sacrificing partners. Entries discuss करते हैं. By the sacrificing partners. What entry we will pass? पहले वो जब में लेके आएगा तब एंट्री क्या करेंगे? Either cash account debited or bank account debited. This is debited to premium for goodwill, right? अगली एंट्री क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स. पहली दो एंट्री सेम रहती है. प्रीमियम फॉर गुडविल is to be debited to what? Sacrificing partners. Then sacrificing partners decided to withdraw fully. अगर हाफ होगा तो इस अमाउंट का हाफ कर लेना, अगर 30% होगा तो इस अमाउंट का 30% कर लेना, अगर फुली है तो हम लोग क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिटेड मींस कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे ही आएगा. सेक्रीफाइसिंग और कैश में लेके जा रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश. दैट इज विथड्रॉल ऑफ कैपिटल. मींस जब उन्हें गुडविल मिली तो हम लोगों ने उनकी कैपिटल को क्या किया? क्रेडिट किया. जब वो गुडविल का हिस्सा विथड्रॉ करके लेके जा रहे हैं तो यू हैव टू शो द आउटफ्लो ऑफ द कैश. दिस इज द थर्ड केस. Second case was retained in the business. Third case is withdrawal by them. Either they can withdraw it fully or they can withdraw it partly, right? नहीं, no withdrawal. चलो यहाँ पे करते हैं. मान लो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर A और B है, ठीक है? 10,000 गुडविल थी. They are getting 5,500. सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लो इक्वल. They decided to withdraw fully. तो एंट्री क्या होगी? A डेबिट, B डेबिटेड 5,000, 5,000 to cash 10,000. अगर क्वेश्चन में लिखा है दे विथड्रॉ 50% ऑफ इट और हाफ ऑफ इट, तो ए डेबिट विद 2500, बी डेबिटेड विद 2500 एंड द कैश का आउटफ्लो कितना दिखाएंगे? 5000. इट्स नॉट इन रेशियो, इट विल बी इन परसेंटेज एंड दैट परसेंटेज ही विल डेफिनेटली बी गिविंग इन द क्वेश्चन, राइट? ईदर इट कैन बी फुली विथड्रॉल और इट कैन बी 30%. 30% ऑफ दिस 1500, 1500. 25% ऑफ दिस 1250, 1250. द वे ही विल बी टेलिंग मी इन द क्वेश्चन. दोबारा बोलो. इस एंट्री में वो अमाउंट लिखनी है, यहाँ पे तो फुली है, यहाँ पे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हुआ है. यहाँ तक एंट्री सेम है जो सेकंड केस में की. दे आर गेटिंग इट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. विथड्रॉल हम लोगों ने देखना है, जितने में विथड्रॉल हमें वो क्वेश्चन में बताएगा. Accordingly, we will be passing the entry for the withdrawal made by them. So it is not essential that every time the new partner is bringing the goodwill in cash. Sometimes he can bring certain assets, like he may bring stock, he may bring machinery. So that goodwill we call goodwill in kind. ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे? Let's see. When the goodwill is, एक example भी करते हैं इसकी. When the goodwill is not brought in cash, rather goodwill is being brought in kind. Goodwill is brought in kind. तो जो जो एसेट वो लेके आएगा, that assets I will be debiting and I, वैसे एंट्री क्या होती है? बस रिप्लेस ही करना है.
वैसे एंट्री है कैश टू प्रीमियम, राइट। अब कैश को डेबिट ना करके वो सारी चीजों को डेबिट कर देना जो वो लेके आ रहे हैं। दैट कैन बी स्टॉक, दैट कैन बी मशीनरी, दैट कैन बी फर्नीचर, एंड डेफिनेटली यू विल बी राइटिंग टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, सामान की फॉर्म में हो सकता है पार्ट ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल ही में ब्रिंग इन कैश, तो हो सकता है कुछ हिस्सा वो कैश में लेके आए और बाकी किस में लेके आए, काइंड में। आई विल बी रीडिंग अ स्टेटमेंट फॉर यू व्हेन दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। यस, सुनना जरा। Z is a new partner. He contributed the following assets to his capital and his share of premium for goodwill. और assets के नाम है stock debited, debtors debited, land debited, plant and machinery debited. Means इन सारे assets में उसकी capital भी है और goodwill भी है। Illustration number 25 of your book. I am solving. Let's see. Practical करेंगे, थोड़ा सा आपको refresh भी होगा chapter. When he brings his share of goodwill in kind. So this is example number 25. X is to Y, 3 is to 2. They admitted Z. Z is coming for 313 and the new profit sharing ratio is this. सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या है, I need to calculate sacrificing ratio because premium for goodwill की एंट्री मेरे को sacrificing ratio में डिवाइड करके ही करनी है, राइट। चलो sacrificing ratio निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। किसका सेक्रीफाइस होगा, नए का कभी सेक्रीफाइस नहीं होता, सेक्रीफाइस इज ऑलवेज बीइंग मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स, राइट। सो दिस इज व्हाट एक्स कैप सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, बोलो, ओल्ड माइनस न्यू, 3/5 minus 5/13. व्हाट अबाउट वाई सेक्रीफाइस, बोलो जी, 2/5 minus 5/13. सो 65 एलसीएम, 39 minus 25, that comes to me 14/65. Calculation check करना भाई। 65, this is 26, this is 25, 1/65. So their sacrificing ratio comes to me 14:1. Am I right? 14:1 is their sacrificing ratio. Yes, matching with the book. अब पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। Z contributed for capital as well as for goodwill. चलिए जी करते हैं। Let's see. पहली एंट्री, जो भी एसेट वो लेके आ रहा है उन एसेट्स को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेट्स सी, कहीं पे कैपिटल की अमाउंट दे रखी है। एक चीज और याद रखना भाई, 10,40,000 he is giving me in the question and that he is saying this is the firm's goodwill. Z अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा, Z का शेयर निकालू गुडविल का, कितना आएगा, 3/13, 8 पे जाएगा, 13 8 से 104 रहता है, ठीक है। सो दिस विल बी 80,000, 80,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। व्हाट इज द शेयर ऑफ Z's गुडविल, सो टोटल फर्म्स गुडविल ही इज गिविंग, राइट। आई जस्ट मल्टीप्लाइड इट विद व्हाट, हिज शेयर, 3/13 से मल्टीप्लाई किया, 2,40,000 इज प्रीमियम फॉर गुडविल। इस मींस की एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल आपको क्रेडिट करना है 240 से। अब जितने भी एसेट वो दे रहा है, दैट एसेट आई एम डेबिटिंग। स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड, पूरा फॉर्मेट बनाना है, सब्जेक्टिव नहीं आना, लेकिन सेकंड टर्म में जब आएगा तो यू हैव टू प्रिपेयर द फॉर्मेट फॉर पासिंग एंट्रीज। दिस इज व्हाट डेटर्स अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक ही इज गिविंग मी 80,000, डेटर्स ही इज गिविंग मी 1,20,000, लैंड इज टू बी डेबिटेड। क्या हो गया, व्हाट इज द डिस्कशन, प्लांट एंड मशीनरी 120। अब इसमें से वो कहता है कैपिटल भी है और गुडविल भी है। गुडविल मेरे को पता है, बाकी डिफरेंस कैपिटल आएगा। अगेन ये एमसीक्यू बनता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल बीइंग ब्रॉट इन बाय Z व्हेन ही विल बी गिविंग यू द टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म टू प्रीमियम फॉर गुडविल में डालूंगी, फर्म नहीं जो उसका शेयर है, और बाकी डिफरेंस कैपिटल होगा। ऑरली कैलकुलेशन करो, 120 + 120, 240, 240 और 2 440, 440 और 80, 520। 520 में से 240 प्रीमियम फॉर गुडविल है, बाकी 280 क्या होगा, कैपिटल। इट मींस कि Z की कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, दैट कम्स टू मी, बैलेंसिंग फिगर है, 2 Z's कैपिटल मैं लिख के रख लेती हूँ, पर हमें नहीं पता, दैट वी विल बी कैलकुलेटिंग, वी विल बी कॉलिंग इट BF, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल दैट इज 2,40,000। इन चारों का टोटल 520 है, 520 में से 240 माइनस किया,
it is obvious that 280 is the capital. अब अगली एंट्री करवाओ. Next entry, premium for goodwill account debited to X capital to Y's capital in which ratio? Ratio is in front of you. That is 1:14. 14:1. So that you will divide. That's it. And nothing is mentioned. It means the goodwill is being retained by them into the business. अगर withdrawal होगा तो वो साथ में एक line add करेगा. X and Y decided to withdraw the goodwill. 50%, 40%, 30% or fully. ठीक है? So this he can add up in the equation. So this was your fourth case when the new partner is bringing his share of goodwill in kind. Okay. इसी क्वेश्चन को elaborate करते हैं. Z का share of goodwill आ रहा है 240. He says मेरे पास 240 नहीं है. I can just bring out of it 1 lakh. A part of his share of goodwill he is bringing in cash और बाकी 140 के लिए उसके पास पैसे की कमी है. So एक केस बन गया when the new partner brings a part of his share of goodwill in cash. बाकी का क्या करें? मेरे पुराने पार्टनर्स तो बोलेंगे हमें तो फुल फ्लेज चाहिए भाई, because we are sacrificing in your favor and we need a compensation, right? तो हम उसके अकाउंट में से निकालेंगे. जब उसके अकाउंट में से निकालेंगे तो we will open his current account, not the capital account. एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिटेड, Z's करंट अकाउंट डेबिटेड विद दिस, कैश अकाउंट डेबिटेड विद दिस, Z's current account debited with this to premium for goodwill. So this case we will also discuss with the help of an example, right? When part of the goodwill he is bringing in cash. और अगला केस होगा when he doesn't have any cash. Last case, he is not in a position to bring his goodwill in cash. Then whole amount we will be taking from his current account. ठीक है मोहित? चलिए जी, 25th के बाद 26th या 27th illustration होगी when he brings a part of his share of goodwill in cash. हाँ, 27th. I am doing 27th illustration. So all the 5 or 6 cases I discussed with you. This is the second last case I am discussing. When a part of his share of goodwill he is bringing in cash. This is 27th illustration. What story he has framed? A and B are partners. 3:2 is their profit sharing ratio. C is coming for 1/4 share, which he takes 1/6. पहले तो यहीं पर ट्रिक है. 1/6 from A and 1/12 from B. Goodwill already existed. ये एक नया केस है भाई. When the goodwill is already existing in the books of account, it is our duty to write it off. And this is to be written off between my old partners in their old ratio. How the goodwill already existing in the books of accounts is to be treated at the time of admission. This is to be written off between the old partners in their old ratio. याद रखना, sacrificing ratio is only to be used when the premium for goodwill is to be distributed between my old partners. In which ratio? In the sacrificing ratio means sacrifice being made by them, right? So this is the old goodwill. I will just be writing it off. उसके बाद कहता है सी के हिस्से की गुडविल 30,000 थी, वो इसमें से सिर्फ 18,000 कैश में लेके आ रहा है. इट मींस कि 12,000 का उसके पास शॉर्टफॉल है, डेफिशिएंसी है. उसके पास पूरे पैसे नहीं है 30,000 कैश में लेके आने को. वो 18,000 कैश में लेके आ रहा है, बाकी 12,000 का हम क्या करेंगे. बट बिफोर आई प्रोसीड, और लिखी भी लाइन, ये ना भी लिखता तो भी मैं ऐसा ही करती. It was decided that the shortfall in the amount should be debited to C's current account. ठीक है, जो भी शॉर्टफॉल है वो सी के करंट अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, डेबिट. बट बिफोर आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट, आई जस्ट वांट टू आस्क सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस इंफॉर्मेशन से कैसे निकालोगे. मान लो यही क्वेश्चन आता है, बाकी गुडविल छोड़ देते हैं. ही जस्ट आस्क यू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ही इज कमिंग फॉर दिस रेशियो व्हिच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी. सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी बताओ, व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. हाँ, बहुत अच्छी बात है. ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/6 is to 1/12. इसका डिनोमिनेटर सेम है ना, 2:1 है. ऑफ लिखा है कहीं पे, फ्रॉम लिखा है. अगर लिखता 1/6 ऑफ ए शेयर, फिर उसके शेयर से मल्टीप्लाई करते, फिर सैक्रिफाइस आता. ये तो सीधा है. इतनी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए भाई. सीधा रेशियो निकल गया 2:1. Why to go with the long cut method? और माइनस माइनस करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा सैक्रिफाइस रेशियो 2:1 है. अब पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री बोलो. गुडविल डेबिट करना, ए डेबिट, बी डेबिट टू गुडविल. पुरानी गुडविल राइट ऑफ 20,000. कौन सी रेशियो, ओल्ड रेशियो 3/5. 12, 18, 8 खत्म. 30,000 उसको लेके आना था, 18 कैश में लेके आ रहा है, 12 नहीं लेके आ रहा. जो नहीं लेके आ रहा खुद वो कहता है करंट अकाउंट में डालो. अगली एंट्री करवाओ.
कैश अकाउंट डेबिटेड, सीज करंट अकाउंट डेबिटेड। अच्छा ये कंबाइन नहीं ना करता, जो कैश में लेके आ रहा है वो प्रीमियम में डालो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना कैश में लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है भाई, 18। अगली एंट्री क्या होती है, जितना वो कैश में लेके आया वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर दो। यहां तक पुराना है सारा हिसाब किताब। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करो, कितने से, कितने से, जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट करना है, 18। जो नहीं लेके आ रहा वो करंट अकाउंट में से निकाल लो, यहां पे करंट अकाउंट ओपन करो। इट मींस कि मेरे पुराने पार्टनर्स को तो बैठे बैठाए 30 ही मिला, 18 जो ले आया वो मैंने प्रीमियम में डाल दिया, जो नहीं लेके आया मैं उसके करंट अकाउंट में से ले लूंगी। In this case, I am just making his current account as my asset because I am debiting the current account in the journal entry. Then I will be preparing the balance sheet at the end of the year after his admission that his current account is to be appeared on the asset side because he is liable to pay to the partners. He is liable to pay to the firm, right? अगर कोई पूछे इसका बैलेंस कितना आएगा बैलेंस शीट में, it will be showing in, we will be showing it in the asset side of my balance sheet. बोलो अगली एंट्री, to A's capital, to B's capital, 30,000 को डिवाइड करो, 2:1, 2/3, 20/10, खत्म होगी बात बस। That is retained in the business. They are not withdrawing the amount. ठीक है जी, 20 और 10। So this was your second last point in regard to या with regard to your treatment of goodwill. अगला 30,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल है, he doesn't have any cash. इसी केस को elaborate करते हैं, he doesn't have any cash. So this entry तो I can't pass because he is not bringing cash. 30,000 उसका शेयर है, वो कुछ भी कैश में नहीं लेके आ रहा, तो ये एंट्री तो कभी पास नहीं होगी। इट मींस कि देन होल अमाउंट आई विल बी पुटिंग टू सीज करंट अकाउंट। बस यही एंट्री, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल तो आई कांट पास एट ऑल बिकॉज प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज ओनली टू बी ओपन्ड व्हेन ही ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, बट ही इज नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग इन कैश। तो ये वाली एंट्री तो स्किप कर देंगे क्योंकि वो कैश में कुछ लेके ही नहीं आ रहा, तो सारे का सारा पैसा कहां से निकालेंगे, उसके करंट अकाउंट में से। एंट्री क्या बनेगी, सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल एंड दिस टाइम करंट अकाउंट विल बी ओपन्ड विद 30,000। एनी डाउट टू एनीवन? मिक्स मैच ही है, मिक्स मैच ही है, जैसे जैसे कहता जाएगा क्वेश्चन में हम वैसे करते जाएंगे। तो ये कौन सा केस करवाया मैंने लास्ट वाला, व्हेन ही डजंट हैव एनी कैश, उसके पास कैश है ही नहीं, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल तो मैं करूंगी ही नहीं, सारा पैसा उसके करंट अकाउंट में से विथड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द वे। नेक्स्ट केस, हिडन गुडविल। डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। हिडन गुडविल मींस he doesn't talk anything about goodwill in the question, but even then he asks us to calculate goodwill. I will be doing one question, then you will come to know how the hidden goodwill is being calculated. वो हमें कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बात करेगा और फिर बोलेगा नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल कैलकुलेट करो। लेट्स सी हाउ ही विल फ्रेम द क्वेश्चन। हिडन गुडविल 7 केसेस हो गए भाई हिडन गुडविल को मिला के। इन एडमिशन वी हैव 7 डिफरेंट केसेस रिलेटेड टू गुडविल। 6 मैं पहले करवा चुकी हूँ। हिडन गुडविल अ सेपरेट टॉपिक ही हैज मेड। You know another name of hidden goodwill is inferred goodwill. See 32nd illustration I am solving. We have 2 partners, Hemant and Nishant. Their profit sharing ratio is 3:2. देखने को लगता है कैपिटल क्यों दे दी, ये फंडामेंटल्स का क्वेश्चन थोड़ी ना। दोनों की कैपिटल दे रखी है 1 लाख, एक की 1,60,000, दूसरे की 1 लाख। They admitted Sumesh. Sumesh is a new partner. He is coming for 1/5 share. सुमेश अपने हिस्से की कैपिटल 1,20,000 लेके आएगा। कहीं पे गुडविल की बात नहीं करी। पुराने बंदों की कैपिटल दे रखी है, नए बंदे का हिस्सा दे रखा है, नए बंदे की कैपिटल दे रखी है। पूछा क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। पहले फर्म की गुडविल निकालो एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस ऑन सुमेश एडमिशन। फर्म की गुडविल निकालो। फिर कहीं नहीं लिखा कि वो अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा कि नहीं। हम मान के चलेंगे वो अपने हिस्से की गुडविल नहीं लेके आ रहा, हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और पुराने पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग से क्या कर देंगे, क्रेडिट। Who will tell me सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी होगी? If nothing is mentioned, sacrificing ratio is always equal to old ratio. वो वाला रूल लगा। रिमेनिंग वगैरह भी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने नई रेशियो के बारे में कुछ बात ही नहीं करी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3:2। पहला पॉइंट ये। नाउ जब हमें पार्टनर्स की कैपिटल गिवन हो और नए बंदे की कैपिटल भी गिवन हो, हम नए बंदे की कैपिटल को बेस बना के टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालते हैं। ठीक है,
गुडविल का फॉर्मूला बता रही हूं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालो ऑन द बेसिस ऑफ सुमेश कैपिटल, सुमेश कैपिटल पोस्ट ऑफ यस डाल के 1,20,000 वो 1/5 के लिए लेके आ रहा है, रेसिप्रोकल के साथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 लाख, माइनस द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एक इसकी और एक इसकी, इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, 160 प्लस 1 लाख 260 में 120 और ऐड किया 380 ना, तीनों की ऐड करके 380. So I got the value of goodwill in this case 2,20,000. Done. 2,20,000. Formula क्या बना? Total capital of the firm minus adjusted capital of all the partners including the new partner. Right? तीनों की कैपिटल मैंने क्या करी? ऐड करी. टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से माइनस किया. I have the goodwill in this question 220. You know this is firm's goodwill. नए बंदे का हिस्सा कितना है? 220 का 1/5 निकालेंगे. He is not bringing his share of goodwill in cash, so we will be debiting his capital. Current account. हम उसके current account को क्या करेंगे? डेबिट. यही किया उसने. 1/5 करो इसका. 220 का 1/5 44,000. बोलो एंट्री. I calculated goodwill on my own. I assumed that he is not bringing his share of goodwill in cash. अगर वो कैश में लेके आता तो वो एक लाइन लिखता, सुमेश brought his share of goodwill in cash. नहीं लिखा. It means he is not bringing his share of goodwill in cash. Cash account debited to premium for goodwill, so I can't pass. सीधा एंट्री क्या होगी? सुमेश करंट अकाउंट डेबिटेड टू हेमंत कैपिटल अकाउंट टू निशांत कैपिटल अकाउंट, इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इन दिस केस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू द ओल्ड रेशियो. Am I right? So a new concept we learned, which is of hidden goodwill. So 7 topics we have discussed related to goodwill. You can well imagine to what extent it is important. ठीक है, अगर आपको एडमिशन के साथ गुडविल के पॉइंट आ गए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज वाला जो चैप्टर है उसमें भी गुडविल के मिलते जुलते पॉइंट्स हैं. सो दैट विल हेल्प यू अलॉन्ग. ठीक है, तो एडमिशन चैप्टर हर बच्चा अच्छी तरह से करके जाएगा, बिकॉज इसकी 10-12 नंबर वेटेज है. चैप्टर की लेंथ को देखते हुए और चैप्टर के सारे टॉपिक्स को अगर हम कवर करते हैं तो इट कंप्राइजेस दिस मच वेटेज. अदरवाइज हमारे 5 चैप्टर्स हैं, ऑन एन एवरेज 8 मार्क्स हर चैप्टर की वेटेज है. 8 मार्क्स मतलब, क्योंकि मेरा पूरा सिलेबस नहीं हुआ, मेरे को 40 मार्क्स का पेपर डालना था, ऑन एन एवरेज 8. क्योंकि गुडविल का छोटा चैप्टर है तो हो सकता है गुडविल में से सिर्फ 5 नंबर का सेट हुआ हो. यू आर गेटिंग मी? तो वो जो 3 नंबर है एडमिशन में ऐड हो जाएंगे, मतलब 8 और 3 11 हो सकता है एडमिशन का हो. So this is a tentative blueprint I am telling you, tentative weightage I am telling you, right? And we tried our best to cover each and every topic in your MCQ, right? So that is enough for today. बाकी कल continue करेंगे, and all the best for your second revision test. Today you will appear for ratio analysis and for your admission of. In the 4th period we will be revising business studies only.